ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके जहन में रेल यात्रा की रूमानी यादें ना हो। रेल के डिब्बों में बैठे हुए ही हम में से कई लोगों ने पहली बार हरी भरी वादियों के नज़ारे देखे हैं। कुछ लोगों के लिए तो रेल का सफर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रेल के कोच जिनमें हम और आप सफर करते हैं वो कहाँ बनते हैं? आज़ाद भारत में भारतीय रेल ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। पिछले एक दशक पहले ही वंदे भारत जैसी सुविधाजनक और रफ्तार वाली ट्रेन की कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन आज वंदे भारत के कोचेस भारत में ही बन रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की गारंटी दे रहे हैं। आज हम आए हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहां भारतीय रेलवे के कोच बनते हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे सवारी डिब्बा कारखाना, ये जो चेन्नई के करीब पेरम्बूर में मौजूद है। हम आपको यहाँ भी ले चलेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, साथ ही हम आपको सफ़र कराएंगे वंदे भारत ट्रेन। साल 1955 में शुरू की गई ये है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहां 170 से ज्यादा तरह के रेलवे कोच बनते हैं। यहाँ सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि वियतनाम, मोजाम्बिक, अंगोला, श्रीलंका समेत कई देशों के लिए सवारी डिब्बे बनते हैं। आज देश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली वंदे भारत ट्रेन के भी कोच यहाँ बन रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर रवि कुमार जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ जो वंदे भारत कोचेस बन रहे हैं वहाँ अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। We are very proud of being part of our Vande Bharat production. Actually, we thank our government for giving this opportunity, because this prestigious train may have gone to our any private organization, because it was given to our government organization. So we are very proud of this. And this area actually we are doing furnishing activities. We receive skeleton shell painting completed coaches we receive here, and here all the interior furnishing activities takes place. Actually as soon as we receive the skeleton shell that was completely painted, so here we provide flooring and all the electrical underframe equipments will be loaded down, and also overhead equipments like AC units and pantograph, all equipments will be loaded, and interior flooring panels and side wall panels and roof ceiling panels, all windows and lavatory modules, all will be loaded here. And after that we lower the coach on the bogies, and then it will go for commissioning activities. One more thing I would like to ask, how the production of Vande Bharat train is different from other coaches? Because other trains are having a conventional type, so there we some items are specialized in Vande Bharat coaches. There it is all conventional items like normal windows, and so here we have provided good double seal windows and fully windows covered, and here no gap will be there. That is continuous window we call it. And also we have evac system, this vacuum evacuation system we have, and automatic sliding doors, and also we have a completely sealed gangways, so that will prevent more noise inside. So like that we have a lot of features in this. So it is totally different from our normal coach production. How many people are engaged with Vande Bharat manufacturing?
Vande Bharat team around including contractors and all more than 1,000 people are there. आप देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोग ये वंदे भारत के जो कोचेस बन रहे हैं उसमें शामिल हैं और अब इसी वजह से देश में 100 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन हो चुकी हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे हिस्से में जहां पर लोग अंदर जो काम कर रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आधुनिक भारतीय रेल ने कई सुविधाएं दी हैं जैसे तेज़ गति, सुरक्षा, आरामदायक सफ़र और वंदे भारत की हम इस कोच में जहां बन रही है चेन्नई में ICF में वहां पर हम मौजूद हैं और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? This is electrical ECC panel. This coach now full control panel. This is control panel Light, for fan, light, AC, camera, Wi-Fi, full control panel. automatic door control panel. Yeah, sensor door, automatic door. What's your good name? Albert. अल्बर्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कंट्रोल पैनल है वंदे भारत ट्रेन के हर कोच में क्योंकि वंदे भारत कोच में ख़ास तौर पर ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल होता है। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से निकलती है उससे पहले जो दरवाज़ा है वो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाता है। कई तरीके की आधुनिक सुविधाएं इस कोच में मौजूद हैं। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये अभी कोच तैयार हो रहा है। कई चरणों में सुरक्षा जांच हुई है। उसके बाद इस कोच में अब आगे की कार्यवाही हो रही है। इस पूरे कोच को तैयार करने की जिम्मेदारी ICF की है और यहाँ बड़े लंबे अरसे से जो बड़े बदलाव देखे हैं, जो सवारी डिब्बा साधारण सवारी डिब्बा था उससे लेकर अब यहाँ बड़ी तादाद में वंदे भारत के कोचेस बन रहे हैं। आइए बात करते हैं पुनर्दीप सिंह जी से जो कि यहाँ वर्क मैनेजर हैं। ICF में अपने आप में काम करते हुए कितना प्राइड महसूस होता है, कितना गौरव की अनुभूति है? Yeah, we are extremely proud and we are the new officers being appointed here for the first time. This is my first job only, so we are very proud to be working in such a prestigious factory in which Vande Bharat chair car, Vande Bharat sleeper, Vande Metro are getting manufactured. So it's extremely proud thing. यहाँ लगभग कितने जो लोग हैं वो वंदे भारत के लिए काम कर रहे हैं या फिर टोटल अगर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें तो क्या दिन रात यहाँ पर काम चलता है या फिर किस तरीके से पूरा प्रबंधन है? जी, यहाँ पे दिन रात काम चलता है 24/7 और हर वक्त हमारे सुपरवाइज़र्स, हमारा स्टाफ अवेलेबल रहता है वंदे भारत बनाने के लिए, LHB कोचेस बनाने के लिए। सो दिन रात काम चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि काम कभी रुका हुआ है, काम हमेशा ही चलता रहता है। ऑल द टाइम ऑफिसर्स आल्सो अवेलेबल, ऑल द टाइम स्टाफ, सुपरवाइजर सब अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दिन और रात लगातार यहाँ पर ICF में काम चलता है ताकि आप एक आरामदायक सफ़र कर सकें, सुविधाजनक सफ़र कर सकें और रफ्तार से सफ़र कर सकें। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहां वंदे भारत के कोचेस बन रहे हैं, उसके बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं वंदे भारत ट्रेन में। और वंदे भारत ट्रेन जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन ही चेन्नई से नागरकोइल के लिए वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। हम आपको उसका सफ़र कराएंगे। अभी आपको लिए चलते हैं चेन्नई रेलवे स्टेशन जहां से हम तय करेंगे चेन्नई से नागरकोइल का सफ़र वंदे भारत ट्रेन में। चेन्नई से नागरकोइल तक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है और हम आपको इस ट्रेन की विशेषता बताएंगे, साथ ही बताएंगे इस रूट के बारे में क्योंकि ये बेहद अहम रूट है चेन्नई से नागरकोइल जो कि कन्याकुमारी ज़िले में है। तो आपको लिए चलते हैं चेन्नई से नागरकोइल।
31 अगस्त को देश को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली, जिसमें से एक मेरठ को उत्तर प्रदेश की ही राजधानी लखनऊ से, दूसरी वंदे भारत ट्रेन तमिलनाडु के मदुरई से कर्नाटक के बंगलुरु को, और तीसरी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को राज्य के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल को जोड़ेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेन राज्य में रोजगार के अवसरों में इजाफा करेगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर चेन्नई रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। चेन्नई सेंट्रल से हम नागरकोविल का अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। ये यात्रा करीब 750 से ज़्यादा किलोमीटर की ये यात्रा 9 घंटे से भी कम वक्त में पूरी होगी। हम आपको इस यात्रा की विशेषता, वंदे भारत ट्रेन की विशेषता और इस पूरे रूट के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चेन्नई से निकलकर ये वंदे भारत ट्रेन अपने पहले स्टॉपेज तांबरम पर पहुंची है, और तांबरम चेन्नई जो महानगर क्षेत्र है उसी के अंतर्गत आता है। यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है, और तांबरम स्टेशन के आसपास जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ की, और इसके अलावा शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले स्टॉपेज पर हम पहुँच चुके हैं तांबरम, और इसके बाद फिर नागरकोविल का सफ़र हम तय करेंगे। We have with us former Union Minister Ponni Radhakrishnan. Sir, welcome to Sunset TV. Namaskar. Sir, I would like to ask, how beneficial for this train for those who are traveling to Chennai to Nagercoil? Once there was no train to Nagercoil. After 72 only the foundation was laid, and 76 the train service was there to Kanyakumari. That train too took nearly 15 hours on those days. Now it has reduced to 11 to 12 hours for the express trains. And after having this train, we can reduce the travel time by nearly 3 to 4 hours. So it is a very convenient train for the passengers who are traveling from Kanyakumari to Chennai, Chennai to Kanyakumari. So this is actually we are blessed with this service. We are thankful to our Honorable Prime Minister and Railway Minister, Vaishnav. वंदे भारत के यात्रियों से बात करते हैं जो कि चेन्नई से कन्याकुमारी का सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये इनॉग्रल रन है और इसमें कई लोग आए हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अन्नादुरई है। मैं चेन्नई से तिरुचि जा रहा हूँ ये वंदे भारत एक्सप्रेस में। आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। ये वंदे भारत ट्रेन है, ये तो वेरी फास्ट ट्रेन है। लोग तो जानते हैं हर चीज़ फास्ट में होना चाहिए। फास्ट फूड जाते हैं, फास्ट ट्रेन जाते हैं,
अभी तो मोदी का विचार था अपना इंडिया का 2047 में ये डेवलप्ड कंट्री बनाना है। डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो हर चीज़ ऊपर आना चाहिए, उसका उसमें एक है ये वंदे भारत ट्रेन। My name is Karthik, and first of all I would like to thank the Modi government for such a huge initiative, and the benefits I would say is more of the time. People can save more time because the speed of this train is very fast, and people can reach the destination too fast. People who travel for the business purpose on daily basis can use this train as a mode of travel. Then I would say the cleanliness of the train is awesome. It's very fast, no, so we can reach very earlier than any other transport. If we can finish tiffin in Chennai and going for lunch for Nagarkoil. Yes. So it's very fastest and easiest way to reach. थैंक यू। बिल्कुल, चूँकि मैं आपको बता दूं इस ट्रेन का जो वक्त रहेगा वो सुबह करीब 5 बजे ये चलेगी चेन्नई से, और नागरकोविल दोपहर के वक्त में पहुंच जाएगी, करीब 1 बजे ये पहुंचेगी। तो अपने आप में ये सफ़र को बड़ा आसान करेगी। Vande Bharat provide the upgradation for passengers. It provides more facilities compared to our existing trains. It provides more surveillance camera and sensor door, and also it provides cleanliness, very cleanliness compared to our existing train. And the speed of the train was very fast compared to our existing train 110 km/h. It's run on 130 km/h. Overall the experience is very good. We enjoy. थैंक यू। आप देख रहे हैं कि ये इनॉग्रल रन है, लोग इस सफ़र का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये यात्रा बहुत ही सुखद होने वाली है। जो कि लोग जो चेन्नई से नागरकोविल तक का सफ़र करते हैं, उसके बीच में किसी भी स्टेशन का, तांबरम का या त्रिची का, तमाम शहरों को जोड़ती है ये ट्रेन। और ख़ास तौर पर वंदे भारत जिस तरीके से हम बात करें तो वंदे भारत एक तरह से पूरे देश को अब एकता के सूत्र में पिरो रही है। करीब 100 से ज़्यादा ट्रेनें वंदे भारत की इस समय भारतीय रेल के ट्रैक पर दौड़ रही हैं। तो अभी हम आपको अब अगले स्टेशन की तरफ लिए चलेंगे, उसके बारे में बताएंगे। चेन्नई और तांबरम के बाद अब हम पहुंच चुके हैं विलुपुरम। ये विलुपुरम दरअसल अपने आप में बेहद विशिष्ट स्थान है। यहाँ जो ऑरविलो आश्रम है जिसकी स्थापना लगभग 100 साल पहले हुई थी, वो यहाँ विलुपुरम के ही नज़दीक है। पर्यटन के लिहाज से भी अगर कहें तो विलुपुरम को इस वंदे भारत से एक और बढ़ावा मिलेगा। विलुपुरम आने वाले लोगों को जो चेन्नई से आना चाहते हैं उनका वक्त भी बचेगा। तो हम अभी पहुंच चुके हैं विलुपुरम। इसके बाद जो अगला स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा त्रिचनापल्ली का, जो कि तमिलनाडु ही नहीं देश के जो प्रमुख सांस्कृतिक विरासत वाले शहर हैं उनमें से एक है। ये वंदे भारत ट्रेन 4 डिवीज़न से होकर गुजरेगी, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें त्रिची डिवीज़न है। पर्यटन के लिहाज से और आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण शहर है त्रिची। और त्रिची जो डिवीज़न है उसके ADRM साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू सनसेट टीवी। नमस्कार सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ विल द इंट्रोडक्शन ऑफ वंदे भारत ट्रेन improve travel experience between Chennai to Nagarkoil? This is passing via 4 divisions of Southern Railway, and this will improve the system mobilization, and waiting lists in all the trains will be reducing. By those passengers will be traveling in this train, due to which the public is benefited, districts are benefited, divisions are benefited, railway is also benefited. Country is moving forward for a better tomorrow. Sir, one more thing I would like to ask, what measures have been taken to ensure safety and comfort for the passenger in Vande Bharat train? This is having a lot of additional features compared with the other trains, normal trains.
it is having a very good cushioning effect, and seats are made very in a glamorous manner, which is equivalent to the foreign countries, with a rotational type all those facility, and coaches are made lightweight so that it can travel at a speed of 160 km per hour. These facilities increase the mobility of the public, and they will also feel comfort, so they likely to increase their travel in this train. Sir, one more thing, my final question to you. What do you think? Because you belong to Trichy division. Trichy is known as largest tourist destination. What do you think? Introduction of Vande Bharat train will impact in tourism industry also? Surely, and it will give a lot of boon in the area of tourists, and all its infrastructures will be further developed. Tourism, then road traffic, then accordingly public interference with other states, and going to the Chennai, that capital city, and coming back in the daytime itself. These are all the additional inputs, various facts for improving their family life and social life. உங்களின் அனைத்து பொருள்களையும் உங்களுடன் எடுத்து செல்ல மறக்காதீர்கள். हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाला तिरुचिरापल्ली शहर, और वंदे भारत का हम सफ़र कर रहे हैं, आपको लेकर आए हैं। ये जो चेन्नई से नागरकोविल तक जो ट्रेन है वंदे भारत, ये शुरू हुई है, और तिरुचिरापल्ली में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। We are enjoying this travel and we say all of the benefits in this position. तो चलिए जारी रखते हैं अपना सफ़र। अब हम तिरुचिरापल्ली से ये ट्रेन मदुरई होकर, मदुरई भी मीनाक्षी मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मदुरई होते हुए ये अपने गंतव्य कन्याकुमारी में पड़ने वाले नागरकोविल जंक्शन तक पहुंचेगी। हम भी आपको सफ़र करते हैं, ले चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं मदुरई, और मदुरई को विशेष सौगात मिली है। मदुरई की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, यहाँ से वंदे भारत चलाई जाए, तो यहाँ आज ही मदुरई से बेंगलोर के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, और साथ ही जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं ये भी ट्रेन चलाई गई है, जो कि यहाँ के पर्यटन में और यहाँ के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में एक अहम योगदान देगी। फिलहाल ट्रेन चलने का वक्त हो गया है, तो हम आपको लिए चलते हैं। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं मदुरई में और सफ़र कर रहे हैं नागरकोविल तक का। अब हम पहुंच चुके हैं अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव पर। तिरुनेलवेली जंक्शन पर हम मौजूद हैं। यहाँ से अगला जो स्टेशन है वो नागरकोविल है, और हम अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे वहाँ पहुँचकर। लेकिन अब चूँकि अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, आपको बताएंगे कि ये बहुत ही आरामदायक सफ़र है, बेहतरीन सफ़र है। और इसके बाद नागरकोविल का स्टेशन आएगा, वंदे भारत का जो कि आखिरी स्टेशन होगा। वंदे भारत ट्रेन के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, नागरकोविल। ये सीधे अब चेन्नई से वंदे भारत के ज़रिए जोड़ सकेगा, और यहाँ लोगों में तमाम
हम देख रहे हैं बड़ी भीड़ आई है इस ट्रेन के स्वागत के लिए और यहाँ लोगों में बड़ा उत्साह भी है। निश्चित तौर पर ये जो वंदे भारत ट्रेन है यहाँ की सामाजिक और आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं उनमें भी एक बड़ी मदद करेगी, मददगार साबित होगी। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम रेलवे पर एक विशेष श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, उससे जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त और साथ ही मेरे कैमरा पर्सन राज ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।